यस स्टूडेंट, आज हम लोग एक सैंपल में देखेंगे कि हाउ टू राइट द एसआरएस। तो एसआरएस जब भी लिखना हो तो ही हम लोग यहाँ जो एसआरएस देखने जा रहे हैं, दैट इज ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। एंड सपोज वी आर राइटिंग द एसआरएस ऑफ द हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, देन व्हाट आर द main fields and what should be the format of the SRS. Here we are taking an example with help of which we shall understand that. So first of all, we write down the introduction about what is the objective of our project. For example, it is hospital management. Then what we shall write? We shall write that hospitals are the essential parts of our life, providing best medical facilities to the people suffering from various ailments, which may be due to change in climate condition, increased workload, emotional trauma. Like this, we shall define the objective of the software. After that, we shall write down what advantage this software will give, because of which we need this software. As here it is written in the second paragraph, thus keeping the working of the manual system as the basis of our project, we have developed an automated version of the manual system named as hospital management system. The main project, our project is to provide paperless hospital up to 90%. So here they are showing that, mentioning that they have, this is the advantage that they are producing the paperless hospital, and it also comes on providing low cost reliable automation of existing system, and it would be cost efficient to use the automated service of this software. And the system also provide excellent security of data at every level of user system interaction, and also provide robust and reliable storage and backup facility. It means कि इसके अंदर हम डेटा को एक स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं, डेटा बिकम सिक्योर, नोबडी कैन access that data without permission, and so this is providing cost, it is very cost, it will save the cost cutting, it will provide cost cutting, it will be more efficient, it would be more secure, and it would be create a paperless hospital that is more secure, and or the implementation cost would be of the hospital would be less than the current current scene after implementation of the software. तो इन्होंने लिखा, after that we shall, next field would be the next would be the purpose. तो purpose क्या है? It has two level of user, administrator level and user level. तो user को classify किया है. The software include maintaining patient details, provide prescription, precaution and diet advice, provide and maintain all kind of test for patient. तो ये individual purpose से क्या है? Individual patient के test records को save करेगा और अपने मेंटेन करेगा उसके पेशेंट डिटेल्स को, और उसको प्रिस्क्रिप्शन, प्रिकॉशन, ये सारी चीजें भी प्रोवाइड करेगा. अब डॉक्यूमेंट कन्वेंशनल में क्या होगा, इसके अंदर हमारे में क्या होगा जो यूज किया जाना है, हॉस्पिटल एचएमएस मतलब शॉर्ट फॉर्म में यूज होगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लॉगिन मॉड्यूल, और ये सारी चीजें जो भी आप शॉर्ट फॉर्म में यूज करेंगे, बिकॉज इन सम प्लेसेस यू वुड राइट यूज द शॉर्ट फॉर्म इंस्टेड ऑफ राइटिंग द डिटेल नेम. तो एसएमई सर्वर मॉड्यूल्स, डीबी मतलब डेटाबेस, ईआर मतलब एंटिटी रिलेशनशिप, एंड डीडीबी मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस. तो इसमें आपके ऑडियंस होंगे फर्स्ट, उसके बाद ओवरऑल डिस्क्रिप्शन होगा कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं आपके अंदर, जैसे कि प्लान्ड अप्रोच टुवर्ड वर्किंग एक्यूरेसी इसमें ज्यादा होगी, नो रिडंडेंसी मींस ओनली वन कॉपी विल बी जनरेटेड, no need to create the multiple copies or multiple hard copies of the same prescription or bill. The software will maintain a single copy. Those who need that can access it through their access it through the from the database. An immediate retrieval operation. It will not take much time to find the data in the file and to search for the required data. Computer can efficiently give you that record within second. And immediate storage means you need not to open the file and store the page and fix the page in the file, but instead you can directly save within no time. So it is very easy to operate. It will take less space for data storage, and it would be much more planned approach. So the background is like कि हॉस्पिटल बैकग्राउंड हम यहाँ पे पूरा बताएंगे कि ऑपरेशनल में क्या क्या चीजें हैं. तो हॉस्पिटल प्रोवाइड क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, जो फंक्शनैलिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको देखना पड़ेगा.
डायग्नोसिस होती है, प्रोवाइड ट्रीटमेंट होता है, फैसिलिटी होती है, और पेशेंट के बारे में कंसल्टेशंस होती है। तो ये सारी चीज़ें, कंसल्टेशन है तो हमारे प्रिस्क्रिप्शन बनेगी, उसके बाद दवाई परचेज की जाएगी तो बिल प्रिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, प्रिस्क्रिप्शन के बाद बिल पेमेंट होगा। तो सॉफ्टवेयर हैज टू डील विथ ऑल दीज थिंग्स बिकॉज बाय एनालाइजिंग द बैकग्राउंड ओनली वी कैन गेट द एक्चुअल रिक्वायरमेंट। तो इसके अंदर होगा वेरियस ऑपरेशनल वर्क आर डन, हॉस्पिटल्स आर जनरेटिंग बिल हो गया, आप लोग का रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट और रिगार्डिंग द टेस्ट रिपोर्ट्स ऑफ द पेशेंट और रिकॉर्डिंग द storing the prescription issued to the customer and bill paid by the customer. All these things has to be done by the software. अब इसमें क्या होगा, हम जो अपना प्रोडक्ट बनाएंगे उसका फ्रंट एंड सपोज यहाँ पे बताया गया है कि JSP HTML CSS जावास्क्रिप्ट से बनाया जाएगा, हम ये बताएंगे, और जावा सर्वर पेजेस का यूज किया गया। तो उसके अंदर हम लोग बताएंगे HTML क्या है, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट है, जावास्क्रिप्ट जैसे इन्होंने फ्रंट एंड यूज किया तो दे विल गिव द डिटेल इंफॉर्मेशन व्हाट लैंग्वेज और software did they use to create the front end. Similarly for the back end they are using the MySQL for storing the database. So you will also define the, if you are using a new database, or you will define that as a MySQL is the word second most widely used open source relational database system. तो इसका हो गया। फिर आपने बैकएंड उसमें आपने क्या यूज किया, PHP का यूज किया है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के लिए फॉर वेब डेवलपमेंट, बट ऑल्सो यूज्ड अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो वेब सर्वर क्या होता है, इसमें विद जनरेट द रिजल्टिंग वेब पेजेस, तो उसमें से होता है। फिर SMS गेटवे भी इसमें क्रिएट किया गया है कि इसके थ्रू आप लोग को क्या कहता है, टू एक पर्टिकुलर जगह पे आपको मैसेज मिल जाए कि अगर पेशेंट ने बिल पेमेंट किया कुछ किया तो उसके पास एक कंफर्मेशन मैसेज भी जनरेट हो जाए। तो ये भी होगा। अब हम लोग अपने जो सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे उसका यूज केस डायग्राम दिखाएंगे कि एडमिन किन फंक्शन से डील करेगा और पेशेंट को किन फंक्शन से डील करना हो करेगा। तो यहाँ पे बताया गया है कि एडमिन जो होगा वो मेंटेनेंस का रिकॉर्ड मेंटेन करना, बिल जनरेट करना, और किसी पर्टिकुलर पेशेंट को कौन से डॉक्टर एलोकेट करना है, पेशेंट को एडमिट करना है, किसको कौन सी नर्स एलोकेट करनी है, इनको डील करेगा। सिमिलरली पेशेंट है तो वो रजिस्ट्रेशन और पेशेंट की ID वगैरह, पेशेंट अपने पेशेंट ID से देखेगा और ये सारी चीजें रजिस्ट्रेशन करेगा तो उसको पेशेंट ID मिलेगी। उसके बाद आप लोग और भी चीजें हैं कि पर्टिकुलर अगर आप असाइन नर्स कर रहे हैं तो असाइन वार्ड टू द नर्स, तो नर्स को भी आप वही पेशेंट, और भी रिलेटेड एक्टिविटीज बहुत सारी होंगी जो आपस में होंगी। जैसे असाइन नर्स की बात करें तो उसको वार्ड भी असाइन होगा, कौन सा नर्स को कौन सा वार्ड असाइन हो रहा है ये भी आप मार्क करेंगे। अगर आप पेशेंट को एडमिट कर रहे हैं तो पेशेंट को भी एक वार्ड असाइन होगा। तो ये सारी चीजें, अगर आप पेशेंट को सर्जन असाइन कर रहे हैं तो असाइन मेन सर्जन, असाइन असिस्टेंट सर्जन कौन सा कर रहे हैं, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी। और इस सॉफ्टवेयर का यूज डॉक्टर, सर्जन, स्पेशलिस्ट भी करेंगे, किसके लिए, टू परफॉर्म ऑपरेशंस और पर्टिकुलर एक्टिविटी में पेशेंट चेकअप। तो किस लेवल पे कौन सा यूजर हमारा रिलेटेड है, वो डायरेक्ट सॉफ्टवेयर तो यूज नहीं कर रहे पर वो एक्टिविटी में कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व है। फिर इसके क्लास डायग्राम जैसे मैंने बताया था उसमें 3 पार्टीशन होंगे, क्लास नेम, क्लास एट्रीब्यूट और क्लास मेथड्स। तो उसके बेसिस पे हम दिखाएंगे कि हमारे क्या क्या हैं। सबसे पहले हॉस्पिटल्स होगा, तो हॉस्पिटल में हमारे क्लासेस होंगी, डॉक्टर होंगे, ऑपरेशन थिएटर, और फिर ऑपरेशंस क्लास है, फिर सीनियर डॉक्टर आपके हो गए, पेशेंट, प्राइवेट पेशेंट, और उसमें आप लोग जनरल पेशेंट। जैसे कि हमने बनाया प्राइवेट रूम, तो प्राइवेट रूम में प्राइवेट पेशेंट हो गया, अगर वार्ड में जा रहा है पेशेंट तो वो आपका जनरल पेशेंट हो गया। और हर रूम के साथ में आपको हॉस्पिटल के साथ नर्स क्लास भी एक एसोसिएटेड होगी, तो दिस वुड बी क्लास डायग्राम। तो क्लास डायग्राम में आपको बताया था पहला होगा क्लास नेम और उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होगी। जैसे कि अगर आप लोग प्राइवेट पेशेंट की बात करें तो प्राइवेट पेशेंट में एट्रीब्यूट क्या होंगे, पेशेंट की ID होगी, नेम होगा, उसकी डिजीज होगी और वार्ड ऑफ पेशेंट होगा। फिर उसके साथ में फंक्शन, उसके मेथड्स में क्या होंगे कि उसका डिस्चार्ज कब हो रहा है, उसका ऑपरेशन कब हो रहा है। फिर ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में आप लोग का हो जाएगा कि ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट में आप लोग देखेंगे कि आप लोग इसमें हम लोग देखेंगे GUI देखें, क्लाइंट मशीन्स जो हैं आप लोग का मेन सर्वर। तो इसके अंदर आप लोग पर्टिकुलर अलग अलग फीचर के हिसाब से आप लोग सर्वर में बनाएंगे कि हमारा क्या है, एडमिटेंस, कब एडमिटेंस है, पेशेंट है, डिस्चार्ज है, ऑपरेशन है, ट्रीटमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, ये अलग अलग सर्वर पे फंक्शन होंगे कि डिस्चार्ज की एक टेबल अलग बना होगा, पेशेंट का रिकॉर्ड अलग मेंटेन होगा, एडमिट कौन कौन से लोग हैं। तो ये सारे अलग अलग अकाउंट्स होंगे जिनको देख करके ऑपरेटिंग रिपोर्ट होगी।
और वो उसके थ्रू वो डेटाबेस में स्टोर्ड होंगे। तो डेटाबेस में फाइनली आपके पेशेंट का डेटाबेस होगा, स्टाफ का डेटाबेस होगा, अकाउंट का डेटाबेस होगा, ऑपरेशन डेटाबेस होगा और एडमिन का डेटाबेस होगा। और जिसमें मेन सर्वर से आप लोग का डेटाबेस सर्वर और मेन सर्वर पे आपके जो रिकॉर्ड्स हैं वो हैं एडमिटेंस, ऑपरेशन, ट्रीटमेंट, डिस्चार्ज, ये सारी चीजें होंगी। तो और यूजर एनवायरनमेंट भी इसी तरह से हम लोग दिखा देंगे कि यूजर एनवायरनमेंट में क्या है। अगर डॉक्टर हैं तो वो एडमिट करेंगे पेशेंट को, ट्रीटमेंट करेंगे, डायग्नोस करेंगे और टेस्ट के साथ डिस्चार्ज भी देंगे। और उसमें अगर आप पेशेंट बिल से क्या होगा, बिल्स का पेमेंट होगा, कैश में हो सकता है, और फिर ऑपरेशन होगा। तो हम अलग अलग मॉड्यूल्स, उसके बाद हम डीएफडी लेवल पे आएंगे। अलग अलग डीएफडी लेवल्स पे हम अपने प्रोग्राम को शो करेंगे। जीरो लेवल डीएफडी में हमारा सिंगल कंटेक्स्ट डायग्राम की तरह हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम एक सिंगल एंटिटी तौर पर दिखाया जाएगा, सिंगल सिस्टम की तरह दिखाया जाएगा। और उससे 3 तरह के यूजर इंटरेक्ट करेंगे, डॉक्टर, पेशेंट एंड एडमिन। तो ये 3 होंगे। और डीएफडी लेवल पे हम उसको एनहेंस करेंगे और उसमें हम दिखाएंगे कि पेशेंट का रजिस्ट्रेशन है, उसको इलेबरेट करेंगे कि अगर वो डॉक्टर हैं तो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और उसके बाद वो हमारा फार्मेसी के मैनेजमेंट सिस्टम, उसके बाद बिल पे मैनेजमेंट पेमेंट पे, और पेशेंट जाएगा। और फिर पेशेंट और सब चीज़ें, पेशेंट इंफॉर्मेशन पेशेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम में स्टोर होगी। तो ये हमारा एक डीएफडी लेवल 1 हो गया। इसी तरह से हम लोग यहाँ बनाएंगे कि पेशेंट के रिलेटेड, तो इसको आप लोग डीएफडी लेवल 2 पे हम उसको और इलेबोरेट कर देंगे। और फाइनली हम लोग उसके बाद ईआर डायग्राम बनाएंगे। तो हमने उसका क्लास डायग्राम बनाया, हमने डीएफडी बनाई, हमने उसका ईआर डायग्राम बनाया। तो ईआर डायग्राम में हम लोग उसकी फंक्शनैलिटी नहीं दिखाएंगे, जैसे कि इसमें हम लोग दिखा रहे थे डीएफडी में डेटा का फ्लो दिखा रहे थे। तो मेडिसिन, जैसे कि आप लोग का है मेडिकल डिपार्टमेंट, तो फार्मेसी डिपार्टमेंट एंड मेडिसिन डिटेल्स इसको शो कर रहे हैं। और डॉक्टर्स हैं तो प्रिस्क्राइब मेडिसिन, फिर हमारा रिव्यू प्रिस्क्रिप्शन एंड सेड प्रिस्क्राइब, तो ये सारी चीजें हैं। और इसमें अगर देखें एंटिटीज में, तो आपके जितने भी यूजर्स है, डॉक्टर, पेशेंट, नर्स, हमारा और रिसेप्शनिस्ट, जितने भी हैं वहाँ पे सबके एम्प्लॉयज उसके हॉस्पिटल्स के, सबको लिखा गया है। और आपस में उनके क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो मेडिसिन भी यहाँ पर एक एंटिटी के तौर पे है, और रूम्स, मेडिसिन, ये सारे भी आपके अलग होंगे। फिर रिकॉर्ड्स में भी हम लोग पर्टिकुलर एक मेंटेन करेंगे, वो भी एक एंटिटी बनेगा। तो एक्टिविटी डायग्राम फिर हम लोग उसमें शो करते हैं। तो मतलब ये सारी चीजें आपके एसआरएस में होंगी। तो एक्टिविटी डायग्राम में दिखाएंगे कि हमारी क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म होंगी। तो फ्लो उस टाइप से एक्शन डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम। तो पेशेंट टेक अपॉइंटमेंट, पेशेंट कंसल्ट डॉक्टर, अंडरगोज ऑपरेशन, पेशेंट गेट्स ऑपरेटेड एंड डिस्चार्ज। ये हम एक सर्जरी के टर्म्स में बना रहे हैं इसको। तो ये सारी चीजें हो गई। और इसमें सर्जन ऑपरेट पेशेंट, ठीक है। फिर स्टेट डायग्राम भी शो होता है कि एक पेशेंट कंसल्टिंग, एडमिटिंग, रिपोर्टिंग, डायग्नोस, ट्रीटमेंट, प्रिस्क्रिप्शन, डिस्चार्ज एंड फॉलोअप। ये आपका स्टेट, इन स्टेट में एक पेशेंट हो सकता है, और ये रिपोर्ट होगी। फिर आपका इंटरेक्शन डायग्राम, तो आप जरूरी नहीं सारी चीजें ही आप अपने एसआरएस में बनाए ही बनाएं, आप उसमें से कुछ स्पेसिफिक मीन को आपको इसी एक का यूज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसमें जैसे सारी चीजें बना दी गई हैं। इंटरेक्शन डायग्राम, तो कौन किससे किससे इंटरेक्ट करेगा, तो पेशेंट किससे, रिसेप्शन से, डॉक्टर, और सब लोग जितने हमारे जो लैब इंचार्ज यूजर्स हैं, और यूजर में उनका इंटरेक्शन डायग्राम कैसे होगा कि वो किस तरह से एक दूसरे से इंटरेक्ट करेंगे। हम लोगों ने ये इंटरेक्शन डायग्राम दिखाया है, ठीक है। तो जैसे पेशेंट है वो आपका रिसेप्शन पे भी इंटरेक्ट करेगा, वो डॉक्टर से भी इंटरेक्ट करेगा, वो आपके लैब इंचार्ज से भी इंटरेक्ट करेगा, और मेडिकल डिपार्टमेंट से भी इंटरेक्ट करेगा। सबसे उसको मेडिकल डिपार्टमेंट से इंटरेक्ट करेगा तो उसको मेडिसिन मिलेगी, लैब इंचार्ज के पास जाएगा तो उसको टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी, और डॉक्टर के पास जाएगा तो वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे मिलेगी। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं। इंट्रैक्शन डायग्राम इस तरह से शो किया गया है। और इसको बनाने के बाद हम लोग इसमें एजम्पशन एंड इसमें हम लोग लिखेंगे क्या क्या हमने जीयूआई इंटरफेस यूज किए हैं, क्या हमारे हार्डवेयर इंटरफेस हैं, जैसे सब लिखा जाएगा इसके अंदर। तो कीबोर्ड, माउस क्लिक्स जैसे आप यूज कर सकते हैं, कुछ जगह टच स्क्रीन से यूज होगा, कुछ जगह तो अलग अलग तरह की जो आप जीयूआई यूज कर रहे हैं या हार्डवेयर यूज कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंटरफेस यूज कर रहे हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट में यहाँ पे जावा बीन्स सॉफ्टवेयर इंटरफेस में नेटबीन्स एमएसक्यूएल सर्विस यूज किया गया है, और हार्डवेयर में जो रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो, हार्ड डिस्क, 40 GB, ये सब चीजें हैं। तो आप अपने सिस्टम का एक फीचर भी शो कर देंगे, सिस्टम का ओवरऑल आर्किटेक्चर भी शो करेंगे कि क्या मॉड्यूल्स, सब मॉड्यूल्स करके होंगे इसमें हमारे। तो इन सब के कंसल्टेशन में आपका क्या होगा, ओपीडी, ऑपरेशन, एडमिट,
तो उससे भी चीज ज़्यादा समझने में आसानी होगी। और सारे जितने भी आपने टर्म्स यूज किए हैं, आप भले ही उसको समझ रहे हो, आप सारी चीजें उसको डॉक्यूमेंटेशन में डिफाइन करेंगे कि व्हाट इज डॉक्टर, कि क्या क्या उस मॉड्यूल में क्या क्या फीचर आपको अलग अलग मॉड्यूल का लिखना पड़ेगा, किस मॉड्यूल में आपको क्या क्या फंक्शनैलिटी मिलती है। इन केस ऑफ कंफ्यूजन वो सारी चीजें क्लियरली पता चल जाएं। और एक्शन हो सकता है कौन से मॉड्यूल्स में हम लोग क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, किस मॉड्यूल्स का क्या यूज है और क्या एक्शन परफॉर्म किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन, और डिस्क्रिप्शन के बाद उसके एक्शंस को मॉडिफाई कर देना है। हर डॉक्टर मॉड्यूल, जितने मॉड्यूल्स है सबका एक्शन आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फिर आपका फंक्शनल रिक्वायरमेंट आपकी क्या है, आप लोग की उसको लिखना पड़ेगा। फिर नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट जैसे मतलब उसका पासवर्ड मैनेजमेंट, रेगुलेट डेटाबेस आर्काइव, वायरस प्रोटेक्शन, ये सब फंक्शनल नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है। सेफ्टी रिलेटेड, सिक्योरिटी रिलेटेड, वो भी आप बताएंगे इसके अंदर। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, आपकी एसआरएस का पार्ट होंगी। एंड यूजर डॉक्यूमेंटेशन होगा उसके बाद, और लास्ट में आप लोग इसमें अपेंडिक्स को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आपका ये टोटल आपका एक स्पेसिफिकेशन हो पूरा एसआरएस में। आपका एक सैंपल देखा आपने, और आपने डॉक्यूमेंट को करेंगे। इसमें बहुत सारे फीचर्स यूज किए गए, आप उसमें से कुछ लिमिटेड का भी यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। पर डीएफडी, ईआर डायग्राम, यूज केस डायग्राम, इतना तो आप लोग रखेंगे, और बाद में आप कुछ बनाते हैं तो वो बेटर ही होगा। ठीक है, दैट्स ऑल।